শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। প্রণাম। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 14 এবং 15 এর তাৎপর্যের মাঝখান থেকে কন্টিনিউ করছি। দুই প্রকার ইন্দ্রিয় হচ্ছে 10টি বহিরিন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন। ঠিক আছে? এভাবে 11টি ইন্দ্রিয় রয়েছে। নিরীশ্বর কপিলের মতো জরা প্রকৃতি নিত্য এবং সর্বশক্তিশালী। प्रभुपाद जी इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है ना अभी इसमें 2000 प्रश्न आएगा। निरीश्वर कपिलेर मते जरा प्रकृति नित्य एवं सर्वशक्तिशाली। চেতন বলতে কিছুই নেই এবং জড়ের কোনো কারণও নেই। জড় পদার্থই সবকিছুর মূল কারণ। তা সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বকারণের কারণ। এই নিরীশ্বর কপিল সাংখ্য দর্শনের মতে মহৎ তত্ত্ব অহংকার পঞ্চতত্ত্বাত্র এই 7টি প্রকৃতির বিকার এবং অহংকার আদি প্রকৃতি ও প্রধানের বিকার। 11টি इंद्रिय और पंच महाभूत रह गल। बोलून प्रभु, निरीश्वर किसको कहा जाता है? जो ईश्वर को नहीं मानता है। अच्छा, ठीक। এবং 11টি इंद्रिय और पंच महाभूत माटी जल आगुन वायु आकाश এই 16টি বিকার পুরুষ পরিণামহীন বলে কারো প্রকৃতি বা বিকার নন। কিন্তু জরা প্রকৃতি যদিও অচেতন তবুও তা বহু চেতন জীবের ভোগের এবং মুক্তির কারণ। জরা প্রকৃতি যদিও অচেতন তবুও তা বহু চেতন জীবের ভোগের এবং মুক্তির কারণ। क्लियर? हिंदी में क्या लिखा है इसका? यद्यपि भौतिक प्रगति जड़ है किंतु ये अनेक प्राणियों के लिए भोग तथा मोक्ष का कारण है। सही है ना? तार कार्यकलाप इंद्रियातीत किंतु ता सत्त्वेও উন্নত বুদ্ধির দ্বারা তা অনুমান করা যায়। জরা প্রকৃতি এক, কিন্তু 3টি গুণের প্রভাবে পরিণাম শক্তির দ্বারা মহৎ তত্ত্ব আদি বিভিন্ন অতি আশ্চর্য জগৎ প্রসব করেন। समझ में आया? ভেরি গুড। এই ধরনের বিকারের ফলে জরা প্রকৃতি নিমিত্ত রূপিনী ও উপাদান রূপিনী। यस बोलिए प्लीज। बी स्पेसिफिक प्रश्न। हाँ, बी प्रश्न जो कीजिएगा स्पेसिफिक कीजिएगा, पूरा ओपन छोड़ दें। हाँ, ठीक है प्रभु। अभी आप जो पूछे ना समझे तो नहीं समझे। अभी हमने नहीं पूछा, हमने 3 मिनट आगे पूछा था। उस समय क्या कर रहे थे आप जब पूछा? हाँ, 3 मिनट में बहुत लाइन पढ़ लिया ऑलरेडी। এই ধরনের বিকারের ফলে जब पढ़ रहा हूं एक साथ चलिए, जब नहीं समझ में आ रहा है उसी समय रोक दीजिए ना, ये मेरा लिए सुविधा होता है। प्रभु उसी समय करने से ही आप उतनी देर में आगे चले जाते हैं। उसी समय मैंने गूगल हाथ उठाइए, तुरंत रुक जाएंगे। এই ধরনের বিকারের ফলে জরা প্রকৃতি নিমিত্ত রূপিনী ও উপাদান রূপিনী पुरुष व भोक्ता निष्क्रिय व निर्गुण। जो छूट गया, अभी जहां है वहां देखिए और एक साथ चलिए। पुरुष व भोक्ता निष्क्रिय व निर्गुण, আবার সেই সঙ্গে প্রভু তিনি ভিন্ন রূপে প্রতি দেহে চিৎ স্বরূপে বিরাজমান।
তিনি ভিন্ন রূপে প্রতি দেহে চিৎ স্বরূপে বিরাজমান, ঠিক আছে, পরমাত্মা রূপে ভগবান বিরাজমান। জড় কারণটি উপলব্ধি করার মাধ্যমে পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব শূন্য বলে অনুমান করা যায়। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এভাবেই বর্ণনা করার পর সাংখ্য দর্শন নির্ধারণ করেছে যে প্রকৃতি ও পুরুষ সমন্বয়ের ফলে সৃষ্টি উদ্ভব হয়। এই সমন্বয়ের ফলে প্রকৃতিতে চেতনার প্রকাশ হয়। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে পুরুষের মধ্যে কৃতিত্ব করার এবং ভোগ করার শক্তি রয়েছে। বলিए। तो थोड़ा समझाते जाइए, नहीं समझ में। शुरू हो गया, थोड़ा समझाते। क्या प्रश्न है बोलिए। ये प्रश्न नहीं हुआ, थोड़ा समझाते। प्रभु हम आप पढ़ते पूरा जाएंगे। पढ़ते जा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। तो पूछिए ना, कौन सा नहीं समझ में आ प्रभु रहा आप है। अभी भी जितना पढ़े ना नहीं समझ में आया प्रभु। बहुत अच्छा, आप समझा दीजिएगा क्लास के बाद। हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहा है उसको रोकिए तो बोल लेंगे, तब कुछ नहीं बोल रहे। आप इतना पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुर्भाग्य है। हम जो पढ़ रहे हैं लाइन वो बोलिए नहीं समझ में आ रहा है तो हम रुक के समझा देंगे। लाइन नहीं, पूरा का पूरा ही नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा, মুবারক হোক। জ্ঞানের অভাবে পুরুষ যখন মোহাচ্ছন্ন থাকে তখন সে নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে, কিন্তু যখন সে জ্ঞান লাভ করে তখন সে মুক্ত হয়। সাংখ্য দর্শনে বর্ণনা করা হয়েছে যে পুরুষ সর্বদাই প্রকৃতির কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন। आप लोग सोफा में बैठ के सोचिएगा कि पूरा बोलने दो, फिर पूछ एक चीज बोल देंगे, प्रभु समझ में नहीं आया, और फिर बेचारा पूरा समझाते लगेगा। वो दिन गया है। हाँ, अपनी मैक्सिमम लोग भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते जाएंगे, अगर नहीं कुछ पूछा तो हम समझेंगे कि आप समझ लिए। माने दे वांट टू बी स्पून फेड लाइक अ केजी और नर्सरी चिल्ड्रन। यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये लास्ट लाइन जो अभी पढ़ा गया, হ্যাঁ, কিন্তু যখন জ্ঞান লাভ করে তখন সে মুক্ত হয়। সাংখ্য দর্শনে বর্ণনা করা হয়েছে যে পুরুষ সর্বদাই প্রকৃতির কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন, নিউট্রাল। ये कैसे हुआ, उदासीन कैसे है? बिकॉज भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करता है, उदासीन। ये जीव का, आत्मा का कार्यकलाप के प्रति पुरुष एकदम उदासीन रहता है, कभी इंटरफियर नहीं करता है। ओके, ये पुरुष कौन है? ये परमात्मा को बोला गया, थोड़ा आगे भी आया था, मैं बोला था ये परमात्मा रूप में विराजमान। ठीक है, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो सांख्य अभी जो इस पैराग्राफ में आया है, इसके पिछले जो सांख्य दर्शन आया था, ये दोनों एकदम के उसी अलग का, है। कपिल मुनि, प्रॉपर कपिल मुनि का। देखिए, ये- बोगस कपिल मुनि का कभी प्रभुपाद तात्पर्य में इतना 2 पैराग्राफ नहीं देगा। वो निरीश्वरवादी कैसे बोले, निरीश्वरवादी कपिल? बिकॉज उनका, देखिए, कपिल मुनि सांख्य फिलोसफी में एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर, इन दैट सेंस इट इज नथिंग कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल। ओके, क्लियर? इसीलिए प्रभुपाद थोड़ी वो बोगस कपिल मुनि के लिए 2 पैराग्राफ उसका फिलोसफी समझाएगा हम लोग को। जो चीज गलत है उसके बारे में समझाएगा क्या? जो देवाहुति पुत्र कपिल मुनि ने बोला उसी के सांख्य फिलोसफी के बारे में सिखाएगा या उसका विस्तार करेगा। इट इज एनालिटिकल स्टडी, नथिंग टू डू विथ स्पिरिट, ओनली मैटर मैटर मैटर। तो निरीश्वर उनको कैसे कहा गया प्रभु, थोड़ा सा यही बताइए। तो अभी मैंने उत्तर दिया पंकज प्रभु को, हाँ बोले, अब सुनिए। फिर से बता रहा हूं। एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर, कैसे जड़ पदार्थ से जगत, जड़ जगत सृष्टि हुआ, कैसे ये जड़ जगत, नथिंग रिलेटेड टू स्पिरिट, उसको अभी तक छेड़ा नहीं। जो हम अभी ये 2 पैराग्राफ जो पढ़ा, कहीं पुरुष अवतार का वर्णन था? लिखा गया कि पुरुष शक्तिमान है, भोक्ता है। हम पुरुष अवतार मीन्स, वो तो पुरुष माने आत्मा परमात्मा, हम पुरुष अवतार माने हम कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय, इन लोग का कोई वर्णन नहीं था। नहीं, इट इज जस्ट मैटर, कैसे पदार्थ से सब कुछ, इंद्रिय पदार्थ, 5 इंद्रिय, इस सब के बारे में एनालिटिकल स्टडी, ये देवाहुति पुत्र कपिल मुनि ने शिक्षा दिया है। हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये इधर जो कपिल मुनि, वो तो नास्तिक कपिल मुनि, वो उनका मत में कोई भगवान
बोल के चीज नहीं है, सब जड़ प्रकृति का संमिश्रण में एक आ सेकंड, जाता है। एक सेकंड, नास्तिक बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो साक्षात भगवान का शक्तावेश होता है। ना ना वो नहीं, दूसरा जो है, दूसरा दो कपिल मुनि, दूसरा कपिल मुनि का सांख्य फिलोसफी बोगस है, उसके बारे में थोड़ी प्रभुपाद सिखाएगा। ना इसका बारे में तो अभी बोल रहे हैं, मालूम होता है। एकदम नहीं, एकदम नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बोगस कपिल मुनि का फिलोसफी के बारे में इतना डिटेल में सिखाएंगे क्या? वो उसका क्या लॉजिक है? ना कभी नहीं। उसको वो जानना चाहिए, क्योंकि वो क्या उनका फिलोसफी है उसका बारे में थोड़ा जानकारी होने से तो मैंने कॉन्ट्रास्ट किया उसको पता चलेगा। इसी में दिस इज देवाहुति पुत्र कपिल मुनि के बारे में ही, उनका सांख्य बोल रहे फिलोसफी के बारे में ही बोल रहा है। एब्सोल्युटली। ओके ओके बरोबर। আগলা প্যারা, সাংখ্য দার্শনিক প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটি প্রমাণ মেনেছেন। এই প্রমাণ সিদ্ধ হলে সবকিছু সিদ্ধ হয়। উপমান আদি এদেরই অন্তর্গত, সেগুলি অতিরিক্ত প্রমাণ নয়। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অথবা আগম সিদ্ধ অর্থসমূহের অধিক বিরোধিতা নেই। সাংখ্য দর্শনের পরিণাম, সমন্বয়ত সমন্বয় ও শক্তির ক্রিয়া আদি সূত্রসমূহের দ্বারা প্রধানের জগৎ কারণত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। यस पंकज प्रभु। प्रभु, ये जो 3 तरह का प्रूफ को जो मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान और वैदिक प्रमाण। प्रत्यक्ष तो समझ में आया कि जो देखा उसको मान लिया, वैदिक प्रमाण जो शास्त्रों से आ गया उसको मान गया, ये अनुमान वाला कैसे मान सकते हैं? हाइपोथेसिस, कुछ चीज हम लोग लेते हैं ना, लेट दिस बी दिस, ये एक चीज फिक्स रख के बाकी सब उसके ऊपर फिलोसफी बेस होगा। समथिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हो गया, something has to be made fixed और बाकी in relation to that fixed. These are the 3 processes. हिरणमय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वही जो स्टांजा शुरू हुआ वो दुई प्रकार को दोष ठो इंद्रिय और अभ्यंतरीण इंद्रिय मन, ये मोट में 11 इंद्रिय है। अच्छा, इसका बाद कपिल का मत में भौतिक प्रकृति शाश्वत और सर्वशक्तिमान है। ये जो शाश्वत और सर्वशक्तिमान ये कॉन्ट्रास्ट है। नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं। शाश्वत इसीलिए है क्योंकि प्रधान के पिछले पैराग्राफ में प्रधान के बारे में बोला। तो भौतिक प्रकृति जो है इट इज गोडाउन, माने ऐसा नहीं कि एनिहिलेशन के बाद जो गोडाउन का माल सब उड़ जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लास्ट पैराग्राफ में कल हम लोग ने चर्चा किया था, प्रधान रूप में निष्क्रिय रहता है, इसीलिए शाश्वत। ये सही है, लेकिन जो बोलता है कि सर्वशक्तिमान, इसीलिए ये तो सर्वशक्तिमान नास्तिक कपिल का सिद्धांत है, ईश्वर बोला गया है, क्योंकि इसमें स्पिरिट का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें स्पिरिट का कोई उल्लेख नहीं है। ये माने ऑन इट ओन इज पावरफुल इनफ, ऑन इट्स ओन इज पावरफुल इनफ टू क्रिएट एंड मेंटेन। उसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सांख्य फिलोसफी कपिल देवाहुति पुत्र कपिल मुनि का उसको लिखा है एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर। उनका स्टडी अगर पढ़िएगा जो भागवतम में आता है उसमें स्पिरिट का कोई उल्लेख नहीं है। वैसे ही उन्होंने अपना माता को शिक्षा दिया है। আসলে বলদেব বিদ্যাভূষণ তার বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে এই সমস্ত সাংখ্য সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করেছেন। কেননা জড় জগৎ, বলিए ना एक बात, ये बलदेव विद्याभूषण ये बोगस कपिल मुनि का शिक्षा को खंडन करेगा? ये बोगस खंडन माने उसको माना नहीं। हाँ, तो बोगस क्या है? तो बोगस कपिल मुनि तो जस्ट इन माने ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ये बलदेव विद्याभूषण का बात कर रहा है। वो बोगस कपिल मुनि का खंडन करेगा? শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ তার বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে, বুঝতে পারলেন কি বললাম হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ প্রভু? हरे कृष्ण प्रभु जी, खंडन माने क्या है? उसको नेगेट करना, उसको ভুল বলকে बोलना। উনি তো জাস্ট রিসেন্টলি বলদেব বিদ্যাভূষণ অনেক পুরনো, উনি দেবাহুতি পুত্র কপিল দেবের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। खंडन नहीं, खंडन मतलब क्या है? इसको सपोर्ट करना ना उसको नेगेट करना? नेगेट करना। तब तो भगवान को नेगेट नहीं कर सकते हैं ना, भगवान का जो फिलोसफी सही है। नहीं, एनालिटिकल स्टडी को नेगेट किया है, मैटर एंड स्पिरिट को जोड़ा है। यहां सिर्फ स्पिरिट किया है कपिल मुनि देवाहुति,
पुत्र कपिल मुनि सांख्य फिलोसफी। ठीक है प्रभु, और थोड़ा पढ़ते हैं। कुछ लेकिन एक गड़बड़ बात हो रहा याद है। रखिएगा, जो नेगेटिव कपिल मुनि है उसका भी फिलोसफी सांख्य है। ही इज वेरी वेरी न्यू, माने रिसेंटली, इट्स नॉट पुराना। শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ তার বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে এই সমস্ত সাংখ্য সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করেছেন, কেননা জগৎ সৃষ্টির সমস্ত তথাকথিত কারণগুলি খণ্ডন করা হলে সমগ্র সাংখ্য দর্শন খণ্ডন করা যাবে। জড়বাদী দার্শনিকের প্রধানকে সৃষ্টি উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলে মনে করেন। তাদের কাছে প্রধানই হচ্ছে সমস্ত রকমের সৃষ্টির কারণ। সাধারণত তারা মাটি ও মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত দেন। মাটি হচ্ছে মৃৎপাত্রের কারণ এবং মাটিকে কার্য ও কারণ উভয় রূপেই দেখা যায়। মৃৎপাত্র হচ্ছে কার্য এবং মাটির হচ্ছে কারণ, কিন্তু মাটি সর্বত্রই দেখা যায়। গাছ জড়, কিন্তু গাছের ফল উপাদান করে। জড়, জল জড়, কিন্তু জল গতিশীল। এইভাবে সাংখ্য দার্শনিকেরা বলেন যে জড় পদার্থ গতি ও সৃষ্টির কারণ। देखिए वही फेम, जड़ो पदार्थ गति और सृष्टि कारण, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर। मैटर ही सब कुछ कारण है ये जड़ जगत को। অতএব প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তের কারণ। এই মতবাদ খণ্ডন করার জন্য শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রধানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন। देखिए अभी बलदेव विद्याभूषण ने क्या बोला, जड़ा प्रकृति अचेतन এবং তাই তা জগতের উপাদান বা নিমিত্ত কারণ হতে পারে না। জড়জগতের বিচিত্র রচনা ও আয়োজন স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণ করে যে সে আয়োজনের পেছনে একজন চেতন পরিচালক রয়েছে, কেননা চেতন পরিচালক ব্যতীত এই রকম সুসংবদ্ধ आयोजन संभवपर नय। तो ये प्रधान तो निष्क्रिय है, इसको सक्रिय बनाने के लिए पीछे कोई है। तो कल हम लोग ने पढ़ा था ना, जे महाविष्णु अपने आप को दो रूप में विस्तार कर रहा है। एक ये जड़ जो प्रधान है, प्रधान को सक्रिय बनाना, और दूसरे जड़ जगत को पालन करना। जड़ जगत को पालन करते हैं अद्वैत आचार्य रूप में, कल आया था। आई डोंट नो वेदर यू ऑल रिमेंबर और नॉट। सही है, सही है। চেতনের পরিচালনা ব্যতীত এই রচনা হতে পারে বলে অনুমান করা সঙ্গত নয়। আমার মানে चेतन परिचालना व्यतीत मीन्स विदाउट एक कोई चेतन का इंटरफियरेंस ये प्रधान अपने आप में काम करने लग जाएगा, ये संभव नहीं है। ये बलदेव विद्याभूषण बोला है। चेतन परिचालना व्यतीत, व्यतीत मीन्स विदाउट, এই রচনা হতে পারে বলে অনুমান করা সঙ্গত নয়, ইটস নট পসিবল। আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে চেতন ইটগুলি নিজে নিজেই একটি প্রসাদ তৈরি করতে পারে না। रॉ मटेरियल अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, वी नीड वन पर्सन बिहाइंड। यस अच्युत कर्णेश्वर प्रभु बोलिए। चेतन है वो अचेतन, अचेतन ईट होते हैं। অচেতন ইট, কারেক্ট। মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্তকে স্বীকার করা যায় না, কেননা একটি মৃৎপাত্রের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি নেই। এই ধরনের অনুভূতিগুলি জড়াতীত, চেতনা প্রসূত। সুতরাং স্থূল দেহ অথবা মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত এই সূত্রে যথার্থ নয়, ইট ডাজ নট ফিট দ্যাট এক্সাম্পল। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কখনো কখনো বলে যে মালির সহায়তা ছাড়াই মাটি থেকে গাছ গজায়, কেননা সেটি হচ্ছে জড়ের স্বাভাবিক প্রবণতা। यही फिलोसफी था कि अपने आप ही होगा, ये प्रधान और प्रकृति का मिश्रण से ये सृष्टि। दिस वाज द सांख्य फिलोसफी। मैटर से ही हो जाता है, किसी का इंटरफियरेंस करने का दरकार नहीं है। लेकिन वैष्णव मत या मीन्स वो भी अब जैसे बोल रहा था कि वो भी भगवान का अवतार है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मैटर को ज्यादा हाईलाइट किया है। यहाँ बलदेव विद्याभूषण बोलना चाह रहे हैं कि एक स्पिरिट का इंटरफियरेंस 100% জরুরি है। জড়বিজ্ঞানিকেরা কখনো কখনো বলে যে মালির সহায়তা ছাড়াই মাটি থেকে গাছ গজায়, কেননা সেটি হচ্ছে জড়ের স্বাভাবিক প্রবণতা। कोई बोल ही सकता है ना, अपने आप तो गाछ हो जाता है, उसको थोड़ी कोई इंटरफियरेंस दरकार है। তারা এটাও বলে যে জন্ম থেকে জীবের যে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান তাও জড়, মানে हम लोग भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे, हम लोग को कोई स्पिरिट इंटरफियरेंस दरकार नहीं है। हिरण्य गौरंग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो देवहूति नंदन कपिल है, तो उनका विद्याभूषण का एक ही मतवाद है, और नास्तिक कपिल का दूसरा है, यही बोलना है। ठीक है, देखते हैं। लेकिन ना, हाँ राजीव प्रभु।
प्रभु, जो प्रभु बोल रहे हैं वही तो यहाँ पे लग रहा है। निरीश्वर मतलब क्या होता है? निरीश्वर मतलब जो ईश्वर नहीं है। पहला ही शब्द में तो बोला है निरीश्वर कपिल, मतलब वो ईश्वर कपिल नहीं है। भगवान कभी भूल शिक्षा थोड़ी ना देंगे। भगवान ने सांख्य दर्शन में वही बताया जो 2 नंबर चैप्टर में भगवत गीता में भगवान ने बताया था। एक बार क्लास में वही बता रहे हैं कि सांख्य दर्शन जो 2 नंबर चैप्टर में है, उसी के ऊपर सांख्य दर्शन में मैटर अपने आप सब कुछ, यही तो हम जो कहता है अपने आप कंट्रोल करता है। मैटर से ही सृष्टि होता है। मैटर अपने आप का परस्पर का इंटरफेरेंस से सृष्टि होता है। भौतिकवादी जो कपिल देव है उसने ये बोला। फिर कपिल देव का जो शिक्षा है उसको एनालिटिकल कपिल देव का जो शिक्षा है वो जो भगवत गीता में 2 नंबर अध्याय में आता है उसी के अनुरूप है, आत्मा और बाकी इसके ऊपर। वो तो एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर है प्रभु जी। मैटर का कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि होता है। लेकिन वो निरीश्वर कपिल देव ने बोला था। निरीश्वर मतलब जो ईश्वर नहीं है। निरीश्वर इन द सेंस दैट सृष्टि में माने स्पिरिट का कोई उल्लेख नहीं है। मैटर से ही कैसे सृष्टि हो रहा है, ये फिलोसफी, ये जो फिलोसफी बता रहे हैं ये क्या अनुकूल है? भगवान कभी प्रतिकूल फिलोसफी बताएंगे? मैटर वाला मतलब ये प्रतिकूल, ये नेगेटिव नहीं है। ये सिर्फ यही है कि मैटर ऑन इट्स ओन हाउ इट क्रिएशन कैसे करता है। तो भगवान को तो पता है क्रिएशन कैसे होता है, मैटर से होता नहीं है। भगवान क्यों ये बताएंगे? सांख्य फिलोसफी तो ऐसा ही है प्रभु। सांख्य फिलोसफी इज मैटर से। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि प्रभुपाद का जो मतलब प्रभुपाद के कहीं पे मैंने पढ़ा था कि 2 नंबर जो अध्याय में सांख्य दर्शन बताया गया आत्मा और उसके बारे में, कपिल देव ने उसी के बारे में, आत्मा के बारे में नहीं बताया। ये सांख्य फिलोसफी हैज टू डू विद मैटर। एक बात बताइए, तो जो देवाहुति नंदन कपिल मुनि जो है उसका सांख्य फिलोसफी को एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर बोलते हैं, हाँ या ना? नहीं पता मेरे को, लेकिन मैंने हिरण्मय गौरांग प्रभु, हाँ, वही है। लेकिन उधर बोला गया है जो महाविष्णु इक्खन करते हैं वही तो मैटर के साथ जो स्पिरिट का उधर कनेक्शन हो जाता है। जब इक्खन करते हैं तो उसी को आगे और करते हैं, देखते हैं अगर थोड़ा कुछ क्लैरिटी मिले। नहीं तो हम मोहन प्रभु क्लास में पूछ लेंगे। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, इंग्लिश में लेकिन वो निरीश्वर कपिल बोल के वर्ड यूज नहीं हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन में। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। अकॉर्डिंग टू कपिल, बस इतना ही है। मटेरियल नेचर इज एटर्नल एंड ऑल पावरफुल। बिकॉज वेरी क्लियर। कभी प्रभुपाद जी जो नेगेटिव फिलोसफी के बारे में इतना डिटेल 3-4 पैराग्राफ अभी और चलेगा, कभी डिस्कस करेगा जो नेगेटिव फिलोसफी दिया है। एनीवेज आगे थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, मे बी और क्लैरिटी मिले प्रभुपाद की कृपा से। किंतु देह चेतना आदि स्वतःस्फूर्त ज्ञान के स्वतंत्र बोले स्वीकार करा जाए ना, কেননা তাহলে দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে গাছ অথবা জীব দেহের কোনো প্রবণতা বা শতপ্রজ্ঞা নেই। এই প্রবণতা ও শতপ্রজ্ঞার প্রকাশ হয় দেহের আত্মার উপস্থিতির ফলে। এই সম্পর্কে একটি গাড়ি ও গাড়ি চালকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। গাড়ি চলতে পারে এবং বাম দিকে ডান দিকে মোড় ফিরতে পারে, কিন্তু তা বলে কেউ বলতে পারে না যে জড় পদার্থ গাড়িটি চালকের পরিচালনা ব্যতীতই চলতে পারে অথবা ডান দিক বাম দিক মোড় ফিরতে পারে। চালকের পরিচালনা ব্যতীত গাড়িটির স্বতন্ত্রভাবে চলার প্রবণতা বা শতপ্রজ্ঞা নেই। তেমনি অরণ্য মধ্যে গাছের বৃদ্ধির সম্বন্ধে একই তত্ত্ব প্রযোজ্য। গাছের বৃদ্ধি হয় গাছটির মধ্যে আত্মার উপস্থিতির প্রভাব। ইয়েস বঙ্কিম প্রভু বলুন। ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভুজি। একটা আমার বলা হচ্ছে যে আমরা ওপিনিয়নটা অ্যাকসেপ্ট করি অ্যাকর্ডিং টু ডিগনিটি এবং এক্সপিরিয়েন্স। আমরা এখানে মানে কপিল মুনি, দেহাতি নন্দন যে কপিল মুনি, উনি যেটা বলে গেছেন উনি হচ্ছে অবতার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা অ্যাকসেপ্টেড দ্য ওপিনিয়ন। ওকে, কি বিদ্যাভূষণ বলদেব বিদ্যাভূষণ উনি খণ্ডন করেছেন। ওকে, যে কেউ খণ্ডন করতে পারে, সেটা কি অ্যাকসেপ্টেবল আর নট অ্যাকসেপ্টেবল? দিস ইজ একটা কোশ্চেন। আরে কৃষ্ণ বাবু, না না না, আপনি উনি অবতার নয়, উনি অবতারও নন। আমি বুঝতে প্রশ্নটা আসলে একটু মিউট করে দিন। অ্যাকচুয়ালি
हम लोग सबको मालूम है कि 2 कपिल मुनि है, एक देवहूति नंदन कपिल मुनि, उनका शिक्षा सांख्य फिलॉसफी है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर। और एक भी कपिल मुनि है, प्रभुपाद बार बार बताते हैं ये बोगस कपिल मुनि है, और उनका इत्तेफाक से उनका भी जो फिलॉसफी है उसको भी सांख्य दर्शन बोला जाता है, लेकिन वो एकदम बेकार फिलॉसफी है। तो इसीलिए हम लोग कभी मिक्स ना हो जाए, ये प्रभुपाद बताते हैं, ठीक है, वो अलग बात है ना। यहाँ जो चीज प्रभुपाद इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इंद्रावती माता जी, मेरा अनुसार ये देवहूति पुत्र कपिल मुनि का सांख्य फिलॉसफी जो एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर है उसके बारे में प्रभुपाद जी इतना चर्चा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये और थोड़ा पढ़ने से और क्लैरिटी आएगा, देखते हैं। তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে আমরা যদি আপনার কপিল মুনি দেহাতি পুত্র যে কপিল মুনি উনার মতবাদ সাংখ্য দর্শন অ্যাকসেপ্টেড অল দা বডি। नो 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 नो, আমি বললেই যে হবে এরকম না। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, हम भी रीडिंग ही कर रहे हैं, और हमको भी बहुत चीज नहीं आता है, तो आई टेक सजेशन ऑफ मेनी डिवोटीज हु आर सीनियर हियर। वही तो यार कोई टीचर और स्टूडेंट का संबंध नहीं है, ये सब स्टूडेंट है और टीचर है शिल प्रभुपाद। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूंगा वो ब्रह्म वाक्य है, नो। जो हम लोग डिस्कस करके जो आलोच्य अगर निकले अच्छा नहीं तो हम लोग विल टेक हेल्प ऑफ सीनियर डिवोटीज, ये क्लास का स्टैंडर्ड रूल है। ओके, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू ऑल। प्रभु जी क्या लिखा है? अच्छा, কপিল মুনি তার দেবাহুতি প্রধানত সাংখ্য দর্শন, যোগবিদ্যা এবং বিষ্ণু ভক্তির শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মজ্ঞান লাভ এবং সংসার বন্ধন থেকে মুখ্য। ঠিক, এই দর্শনে ভাগবত পুরাণের 3য় স্কন্ধে কপিল গীত অংশে বর্ণিত। কপিল মুনি প্রদত্ত প্রধান শিক্ষাগুলি হলো সাংখ্য দর্শন, জগতের সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পুরুষ জীবাত্মা স্বরূপ ও এবং তাদের পৃথকত্ব জ্ঞান সম্পর্ক শিক্ষা, ভক্তি যোগ, নিষ্কাম কর্ম এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি মোক্ষের লাভ। ওকে, কিছু মূর্খ লোক চালকের স্তূপে বৃশ্চিকের জন্ম হতে দেখে মনে করে चाल होच्छे वृश्चिकेर उत्पत्तिर कारण। तो ये हम लोग भी देखे ना, चावल का अगर आपका घर पे बोरा रखिएगा तो देखिएगा कि थोड़ा स्कॉर्पियो आ जाता है अपने आप। तो इसका मतलब नहीं चावल से स्कॉर्पियो आया। प्रकृतपक्षे स्त्री वृश्चिक चाले डिम पारार फले उपयुक्त अवस्थाय यथा সময়ে ডিম থেকে নতুন বৃশ্চিকের জন্ম হয় এবং তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। তার অর্থ এই নয় যে চাল থেকে বৃশ্চিকের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি কখনো কখনো নোংরা বিছানা থেকে ছারপোকা বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিছানাটাই ছারপোকা জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের কেউ জরায়ুজ, কেউ अंडज एवं क्यों शेदज। समझ में है? कोई अंडा देता है, कोई ऐसे डायरेक्ट बच्चा देता है जैसे ह्यूमंस का होता है। क्यों शेदज, शेदज का क्या होता है इंग्लिश? पसीना लिखा हुआ है पर। अच्छा, पसीना से कुछ जन्म ले लेता है, होगा कोई माइक्रो बैक्टीरिया होगा। বিভিন্ন জীবের আবির্ভাবের বিভিন্ন উৎস রয়েছে, কিন্তু তাই বলে জড় পদার্থকে জীবের উৎপত্তির কারণ বলে কখনোই স্থির করা উচিত নয়। मैं सत्य बात बता रहा हूँ, जिनका पास बुक नहीं है ना, ये चैतन्य चरितमृत, उनका बहुत टफ टाइम हो रहा होगा। अगर हिंदी वासी है कोई जिनका पास हाथ में आंखों का सामने बुक नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ बंगाली और उसको साथ साथ चलना पड़ेगा। ऐसा ये क्लास में होता है। तो इसीलिए दया करके अगर नहीं है बुक तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बुक ले लीजिए। জড়বাদীরা যে মাটি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাছের জন্ম হওয়ার দৃষ্টান্ত দেয়, সেই যুক্তিও এই দৃষ্টান্তের দ্বারা খণ্ডন করা যায়। কোনো বিশেষ অবস্থায় মাটি থেকে জীব বেরিয়ে আসে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে দৈবের অধ্যক্ষতায় প্রতিটি জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিশেষ শরীর লাভ করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন রকমের শরীর রয়েছে এবং দৈবের অধ্যক্ষতায় জীব বিভিন্ন ধরনের শরীর গ্রহণ করে। ক্লিয়ার है?
यम यम वापिस स्मरण भावा। दैवीर अध्यक्षता है माने वो चित्रगुप्त देखता है किसको क्या मिलेगा शरीर, उसको वो शरीर दे देता है उसका कर्म फल का अनुसार। कालिंदी सुविलासिनी माता जी। Yes, Prabhu. Yes. Are you with us or are you stuck where you were? Have you moved on in life? प्रभु आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ, बट आई थिंक वही चीज रिपीट हो रहा है। Same thing. Yes. बस एक साथ चलिए, जो जो मैं पढ़ा हूँ वैसे वैसे हिंदी देखते देखते जाइए। কেউ যখন মনে করে আমি এই কাজটি করছি, তখন আমি বলতে পারি আমি বলতে দেহকে বোঝায় না, তা দেহের অতীত কোনো কিছু বা দেহ অভ্যন্তরীণ কোনো কিছুকে বোঝায়। সেই হেতু দেহের কোনো প্রবণতা বা শতপ্রজ্ঞা নেই। ऑन इट्स ओन बॉडी कुछ नहीं कर सकता है, अंदर आत्मा है उसीलिए सब कुछ कर पा रहा है। প্রবণতা বা শতপ্রজ্ঞা হচ্ছে দেহ অন্তরহীন আত্মা। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কখনো কখনো বলেন স্ত্রী শরীর ও পুরুষ শরীর স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে তাদের মিলন হয় এবং তাদের ফলে সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু সাংখ্য দর্শন অনুসারে পুরুষ যেহেতু সর্বদাই অবিচলিত, তাহলে তার সন্তান প্রজনের প্রবণতা আসে কোথা থেকে? तो वही भगवान बीज प्रदान करता है पुरुष के माध्यम से। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কখনো দুধের আপনা থেকেই দধিতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেন এবং মেঘ থেকে পতিত পরিশ্রুত বৃষ্টির জলের মাটিতে পতিত হয়ে বিভিন্ন গাছপালা এবং বিবিধ ফুল ফলে বিভিন্ন গন্ধ ও রসের সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে জড় পদার্থ আপনা থেকেই বৈচিত্র্যময় জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টান্তটি খণ্ডন করে বৃহদারণ্যক উপনিষদ উক্তির পুনরুল্লেখ করে বলা হয়েছে যে উৎকৃষ্ট শক্তির পরিচালনায় বিভিন্ন রকম জীবের বিভিন্ন রকম শরীরে স্থাপন করা হয়েছে, পুনঃ পুনঃ এভাবেই চলেছে। দৈব নিয়ন্ত্রণাধীনে জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন অবস্থায় বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য আদি বিভিন্ন রকমের শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা প্রকাশ করে। ভাগবত গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে পুরুষ প্রকৃতিস্থ হি ভূয়ক্তে প্রকৃতি জ্ঞান গুণান কারণাঙ্গুণ সংঘর্ষ সৎসৎযোনি জন্মসু। জড়জগতে জীব প্রকৃতির তিনটি গুণ ভোগ করতে করতে জীবের পথে পরিচালিত হয়, জীবনের পথে পরিচালিত হয়। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে প্রভাবেই তা হয়। এইভাবেই সে সঙ্গ প্রভাবেই সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সৎ ও অসৎ যোনি মানে निम्न योनि और उच्च योनि। तो जो निम्न योनि है उसको असत बोला गया है, जैसे सोचिए कीट, पतंग, पशु एक्सेट्रा। सৎ যোনি মানে মনুষ্য যোনি। আত্মা বিভিন্ন ধরনের শরীর প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত রূপে আত্মা যদি বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ শরীর প্রাপ্ত না হতো তাহলে বিভিন্ন রকমের ফল ও ফুলের উৎপত্তি হতো না। ক্লিয়ার है ना? বিশেষ বিশেষ ধরনের গাছ বিশেষ বিশেষ ধরনের ফুল ও ফল উৎপাদন করে। এক শ্রেণীর গাছ অন্য শ্রেণীর ফুল ও ফল উৎপাদন করে না। মানুষ, পশুপক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীতে যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বিভাগ রয়েছে, গাছেদের মধ্যেও তেমন শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। অসংখ্য জীব রয়েছে এবং জড়জগতের প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে তাদের কার্যকলাপও বিভিন্ন এবং এভাবেই তারা বিভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। एर থেকে बोझा उचित जे अच्छा इसमें एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं, ये जो गुण के बारे में बता रहे कि अलग अलग गुण के प्रभाव से अलग अलग शरीर मिलता है, याद रखिएगा ये गुण जो बोला जा रहा है ये सब मनुष्य योनि में ही होता है। ये बाकी का सब लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अलग अलग गुण के मिक्सचर से अलग अलग शरीर मिलता है, ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही पॉसिबल। माने मनुष्य योनि का इंद्रावती माता समझ में आ रहा है? अलग अलग गुण के मिक्सचर से सोचिए मनुष्य 4 लाख योनि है, उसमें एक पर्टिकुलर शरीर मिलेगा आपको। सोचिए हमको मिलेगा बटरफ्लाई का शरीर, लेकिन एक बार बटरफ्लाई का शरीर मिलने के बाद हमको प्रकृति नियम ही फॉलो करते हुए, लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। उसमें हम नहीं बोल सकते कि हम रजोगुण में आ गए थे तो हम टाइगर थे तो एक हिरन को मार दिया, नहीं बोल सकते हैं।
टाइगर हिरन को ही मारेगा, उसमें बोल नहीं सकते कि वो रजोगुण के प्रभाव से या तमोगुण के प्रभाव से मार दिया। इज इट क्लियर? प्रभु तो फिर कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, ये फॉर ह्यूमन बीइंग। अभी उसका कर्म क्या है, उसको तो वो तो सीक्वेंस फॉलो करेगा। टाइगर का कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा, टाइगर थोड़ी पूजा करेगा, मंदिर में आरती करेगा और उनको एक सतुगुणी शरीर मिलेगा। वो तो लॉज ऑफ मटेरियल नेचर फॉलो करेगा। कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा हम लोग के लिए। गाछ क्या करेगा? कर्म, गाछ का जो है वो बड़ा होगा, फल देगा, वही वो सीक्वेंस ही फॉलो करेगा। उसके लिए नहीं बोल सकते आपके कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो जो जीव जंतु वृक्ष पौधा है, ये जो है अपना जो फॉर्म है उसका लिमिटेशंस को ही फॉलो करता है ना, उसके लॉज ऑफ मटेरियल, उसी का धर्म को मान। हम लोग मानव जीवन में ये स्वतंत्रता है, उसको ये स्वतंत्रता है। हाँ, बाकी सब देखा जाए तो परतंत्र है। अगर हम लोग बोले ना भगवान ने जीव को सीमित स्वतंत्रता दिया है, वो सिर्फ मनुष्य के, बाकी क्या स्वतंत्रता? वो सॉरी टाइगर स्वतंत्रता इस्तेमाल करके क्या वो थोड़ी भक्ति भी ज्वाइन करेगा? आई डोंट नो समझा पा रहा हूँ या नहीं। ये सुमना गौरंगी माता जी तो बोल सकते हैं ना कि जैसे मानव के पास में ऑप्शन है, वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, लेकिन टाइगर तो घास नहीं खा सकता है। ही हैज नो ऑप्शन, उसको अपना शरीर के हिसाब से वही खाना पड़ेगा, नॉन वेज। यस, सुमना गौरंगी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जो बोले एक बार फिर से, मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या समझाए? ये मैंने गुण का बारे में बोला है, 3 गुण का प्रभाव से। ये जो अभी आया था ना, अभी प्रसंग जो आया था, व्यक्ति का अलग अलग शरीर अकॉर्डिंग टू मिक्सचर ऑफ द 3 गुणास। ठीक है, अभी एक बात बताइए, ये 3 गुण हम लोग को जो मिलता है वो तो हमारी इच्छा के अनुसार मिलता है ना? हाँ, हमारी इच्छा के अनुसार। ये तो मनुष्य शरीर के लिए बोला जा रहा है। हाँ, कोई तो टाइगर को नहीं बोलेगा कि इच्छा अनुसार वो हमेशा मच्छर के बारे में सोचता था इसलिए मच्छर बन गया, ऐसा तो नहीं सोच सकता है। ये इच्छा अनुसार, ये बिकॉज यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये 4 लाख यूनिज में ही पॉसिबल है, मनुष्य योनि में। अच्छा, ये आप 80 लाख का नहीं बोल सकते कि वो इच्छा अनुसार उसका जैसा इच्छा के वैसे उस शरीर मिला। अरे क्या इच्छा करेगा? वो तो सीक्वेंस फॉलो करेगा, लॉज ऑफ मटेरियल नेचर फॉलो करेगा। यही मैं बोलना चाह रहा था। ओके प्रभु, ओके। अच्छा, बहुत बड़ा है तात्पर्य। और एक पैरा पढ़ लेते हैं, छोटा पैरा है। এর থেকে বোঝা উচিত যে প্রধান জীব শক্তির দ্বারা পরিচালিত না হলে सक्रिय होते पारे ना। वही पुराना बात फिर से, प्रधान जो है गोडाउन में जो पड़ा हुआ सामान है उसमें किसी का इंटरफेरेंस दरकार है, फिर वो सक्रिय होगा, नहीं तो निष्क्रिय अवस्था में चुपचाप पड़ा रहेगा। ताई हाँ पंकज प्रभु, तो यहाँ से वापस ये फिलोसॉफी जो अभी ऊपर बताया उसका खंडन हो गया क्या? हाँ, देखा जाए तो ऑन इट्स ओन मैटर कैन नॉट डू एनीथिंग। यस, এর থেকে বোঝা উচিত যে প্রধান জীব শক্তির দ্বারা পরিচালিত না হলে সক্রিয় হতে পারে না। তাই জড়বাদীদের মত প্রধান স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করতে পারে তা স্বীকার করা যায় না। প্রধানকে বলা হয় প্রকৃতি, অর্থাৎ স্ত্রী শক্তি। স্ত্রী শক্তি হচ্ছে প্রকৃতি। পুরুষের সঙ্গে ব্যতীত কোনো স্ত্রীলোক সন্তান উৎপাদন করতে পারে না। পুরুষের প্রভাবেই সন্তানের জন্ম হয়, কেননা পুরুষ তার বীর্য আশ্রিত আত্মাকে স্ত্রীর গর্ভে সঞ্চারিত করে। উপাদান কারণ রূপে স্ত্রী আত্মাকে দেহ সরবরাহ করে এবং নিমিত্ত কারণ রূপে সন্তানের জন্ম দেয়। স্ত্রীকে যদি সন্তানের জন্মের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলে মনে হয়, তবুও পুরুষ হচ্ছে সন্তানের জন্মের কারণ। তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে জড়জগতে বিভিন্ন রকমের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি কেবল ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান নন, প্রতিটি প্রাণীতে, এমনকি প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান। ব্রহ্ম সংহিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডে, পরমাণুতে এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। তাই জড় ও চেতন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সমন্বিত কোনো মানুষ স্বীকার করবেন না যে প্রধান হচ্ছে জড় জগতের সৃষ্টির কারণ। ठीक है, प्रधान अपने आप कुछ नहीं कर सकते, वही पुराना। हाँ बंकिम प्रभु बोलो। যে যে যেরকম শরীর পায় তার সেরকম স্বভাব চরিত্র সেরকমই হয়, কিন্তু এক্সেপশনালি হয়ে যায় যে যেটা শরীর পেলেও শরীরের বিপরীতে কাজ করে, যেমন জড় ভরত।
না না জড় ভরত উনি সেগুলো আলোচনা করি না আমরা আমরা আচ্ছা। কখনো এক্সেপশনে আলোচনা করি না আমরা না general- তাহলে ঠিক আছে না, এতে এই যে শরীর পাচ্ছে সেই অনুযায়ী তার চরিত্র হচ্ছে, সেই অনুযায়ী যে খুশি থাকছে, যে শরীর পাচ্ছে তাতেও খুশি। মৈত্রী মুনি 11 বার জন্মগ্রহণ করেছে, জন্ম হয়েছে 11, মরেছে, তাতে শরীর খুশি। গোবরের পোকা গোবরে খুশি থাকে, গোবরের পোকাকে পদ্মে রাখলে কিন্তু খুশি নেই। অ্যাকর্ডিংলি যেটা আমার বলা, যেটা আমি বলতে চাইছি, শরীর যায়, যার যার শরীর, সেই শরীরে গুণ তার প্রকাশিত হবে, সেখানে কোন রকম খণ্ডন করা যাবে না। সে মনুষ্য শরীর হোক আর জন্তু জানোয়ার গাছপালা যে হোক। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। সবে বলো হরি হরি। শিল প্রভুপাদ কি জয়।